Good evening students, this is the class 11th special topic, that is chemistry chapter number 2. Now today I will discuss about the shell, subshell, orbital and electronic configuration. It is most important because if you don't know how to write the electronic configuration, you will feel problem always in the future regarding the chemistry. So dear student, it is very necessary to learn how to write the electronic configuration. Before writing the electronic configuration, we must know about the concept of the shell, subshell and the orbitals. Okay, number one, shell. What is shell? As you know, in the Bohr theory, the circular path around the nucleus in which electron moves, that are called shell. Suppose this is a nucleus and it carry a positive charge, and this is the first circular path in which electron revolve. This is called the first shell. This is indicated by K and it is also called 1. It contains maximum number of electron 2. This is the second shell. When you are going away from the nucleus, one more circular path, it is called L or shell number 2, and it can have 8 electron maximum. Now moving towards the third number, this is the third shell. This is called M shell and it is called shell number 3, and maximum number of electron will be 18. So dear students, shells are K, L, M, N, O, or you can say 1, 2, 3, 4, 5. Number of electrons will be 2, 8, 18, 32, then again 18 and so on. But dear student, when you are writing the electronic configuration like scandium 21, so you will see that it has the atomic number 21, and if you will write first shell 2 electrons, in the second shell 8 electrons, in the third shell you can put 18 electrons as it is given. Remaining 11 electrons if you will write, your electronic configuration will be wrong. अगर आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा कि अगर आप लिखते हैं 2, 8, 11, सो इट विल बी रॉन्ग. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज. This shell has minimum energy. First electron will go in this energy level. 2 electrons can be accommodated in this. After that, of the 2 electrons, next electrons will go to the next shell, and in the second shell you can put the 8 electrons. एनर्जी कम है जिसमें वो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी शेल में जाएंगे, फिर उसके बाद तीसरी शेल में जाएंगे. लेकिन जब हम तीसरी शेल में जाते हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं आप. 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिलअप होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें हम अगर 11 लेते हैं तो ये रॉन्ग माना जाता है. क्यों? क्योंकि जब शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो शेल के अंदर भी कुछ पार्ट होता है. शेल के अंदर जो पार्ट हैं उनको हम सब शेल बोलते हैं. जिस तरह से शेल की एनर्जी के, एल, एम की एनर्जी कम से ज़्यादा की तरफ इंक्रीज़ कर रही, के की एनर्जी सबसे कम, एल की और ज़्यादा, एम की और ज़्यादा, उसी तरह से जो शेल के अंदर सब शेल्स हैं उनकी भी एनर्जी कम से ज़्यादा की तरफ इंक्रीज़ होती है. तो इलेक्ट्रॉन शेल में जाने के बाद सब शेल में शिफ्ट होते हैं, और सब शेल में जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उन सब शेल में सबसे पहले बढ़ते हैं. तो अगर हम सब शेल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तभी जान पाएंगे कि किसकी एनर्जी कम है और किस में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए. व्हाट इज सब शेल? ओके स्टूडेंट्स, सब शेल parts of shell are called subshell. जो शेल के पार्ट्स हैं उनको हम सब शेल बोलते हैं. जिस तरह से हमने शेल्स बताई के, एल, एम, एन, ओ, 1, 2, 3, 4, 5, उसी तरह से सब शेल्स के भी नेम हैं और उनके भी सिंबल्स हैं. There are 4 types of subshell only. One is S, sharp. Number second is P, principal. These are small letters. Number
third subshell is D, diffuse, and fourth one is F, fundamental. Fundamentals. So dear students, जैसे हमने आपको बताया शेल्स होती हैं KLMN, उसी तरह से शेल के अंदर सब शेल्स होती हैं SPDF, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। एंड जो फर्स्ट शेल होती है आपकी फर्स्ट शेल दैट्स मीन K शेल, उसमें सिर्फ वन सब शेल होती है, ओनली वन सब शेल। फर्स्ट शेल K शेल हैज़ ओनली वन सब शेल, हैज़ ओनली वन सब शेल, और वो भी कौन सी, वो होती है S, शार्प। सेकेंड शेल दैट्स मीन L शेल हैज़ टू सब शेल्स S एंड P। फर्स्ट में एक सब शेल होगी S, सेकेंड में टू सब शेल्स होंगी S एंड P, शार्प एंड प्रिंसिपल। थर्ड शेल that's mean M has three subshells S, P and D। थर्ड में थ्री सबशेल्स होंगी S, P and D। फोर्थ शेल that's mean N will have four subshells S, P, D and F। Now dear student, next will be the fifth shell, पांचवी शेल होगी, छठी शेल होगी, से और भी हो सकती हैं, लेकिन बाकी की सारी शेल्स में सिर्फ 4 ही सब शेल हो पाएंगी, क्योंकि सब शेल सिर्फ 4 होती हैं S, P, D, F, 4 से ज़्यादा सब शेल नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट्स, आपने शेल पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पहले से भी जाना हुआ था, आज भी पढ़ा। शेल में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन आज आप फर्स्ट टाइम सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानेंगे। एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 2 भी। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में नहीं हो सकते, और हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम S1 लिखेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो S2 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। P सब शेल contain maximum 6 electrons and it can be represented as P1, P2, P3, P4, P5 और P6। अगर P में 1 इलेक्ट्रॉन है तो we will write P1, P2 for 2 electrons and P6 for 6 electrons। बट स्टूडेंट्स, P में कभी 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अगर आप P में कभी P7 लिखते हैं तो आप पहले ही जान लीजिए कि आप रॉन्ग लिख रहे हैं। अगर S पे कभी आप 3 लिखते हैं S3, सो इट विल बी रॉन्ग। उसी तरह से D में 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और आप समझ चुके होंगे कि हम D और F को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, D1, D2, D3 डॉट डॉट D10। Similarly, F1, F2, F3 and F14. Okay students, so students, see what you have observed in the shell and in the subshells. Electrons are 2, 6, 10 and 14. इलेक्ट्रॉन शेल में जाएगा, शेल में कम एनर्जी होगी, शेल में सब शेल होंगी, उनको भी कंसीडर किया जाएगा कि उनकी एनर्जी क्या है। कौन सी सब शेल में इलेक्ट्रॉन को जाना है? पहली शेल में कितने सब शेल? ओनली 1 सब शेल S। दूसरी सब शेल में कितनी सब शेल? 2 सब शेल S एंड P। तीसरी शेल में कितनी सब शेल? 3 सब शेल्स S, P, D। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। ये भी S है, ये भी S है, ये भी P है, ये भी P है। ये वाला S कौन सी शेल का है? डोंट नो। कहीं पे अगर S लिखा है तो आप कैसे जानेंगे कि ये फर्स्ट शेल का है या सेकंड शेल का है या थर्ड शेल का है? S सब शेल तो सारे में होगी। 4 शेल में 4 सब शेल S, P, D, F। ये अगर 4th शेल हम ले रहे हैं तो उसमें
4 सब शेल्स होंगी SPDF। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है D तो आप कैसे जानेंगे कि ये 4 वाला D बोल रहे हैं या 3 वाला D बोल रहे हैं? फिर से देखिए, अगर हम 5वीं शेल लिखें, हमने बताया कि 5वीं, 6ठी और बाकी की सारी शेल में 4 सब शेल ही होंगी, तो अब हम नहीं जान पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, हम इसको लिखेंगे 1S। 1S का मीनिंग है ये पहली शेल की सब शेल, यानी पहली वाली शेल की S सब शेल। 2S, so what should you have to write here? It is clear, you have to write 2P. Now what will be here? 3S, 3P and 3D. Then 4S, 4P, 4D, 4F. 5S, 5P, 5D, 5F. Similarly, 6S, 6P, 6D, 6F. 7S, 7P, 7D, 7F. 8S, 8P, 8D, 8F. सो अब कोई भी हम बोलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी सब शेल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लिखते हैं 6P, दैट्स मीन 6th शेल की P सब शेल। लेकिन आप देख रहे हैं 1 में P नहीं है, 1 में D नहीं है, 1 में F नहीं है। तो कभी भी 1P, 1D, 1F, या 2 में भी D नहीं है, F नहीं है, 2P, 2D नहीं, 2D और 2F नहीं पाएंगे। जिस तरह से आपको पता है कि शेल की एनर्जी K की सबसे कम, L की उससे ज़्यादा, देन M, देन N। लेकिन हमें सब शेल की एनर्जी के बारे में नहीं मालूम। आज हम सब शेल्स की एनर्जी, किस सब शेल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा, वो सीखने जा रहे हैं। अगर हमको सब शेल्स की एनर्जी कम पता चल जाए, किसकी सबसे कम एनर्जी है, तो उसी में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। और अगर आप ये जान जाते हैं कि किस के बाद किसकी एनर्जी है, कौन सी सब शेल के बाद कौन सी सब शेल आएगी, तो आप ये भी जान जाएंगे कि इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, और तब आप फिर सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। हाउ टू राइट द एनर्जी level of subshells? See here, cut like this. What you have cut? 1S. That's mean 1S has minimum energy. Electron will go in the 1S subshell first of all. पहला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो S पे जाएगा, 1S पे जाएगा। और आप जानते हैं, जैसे मैंने लिखा, अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो हम उस पर लिखेंगे 1S1। अगर 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो हम उसको लिखेंगे 1S2। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो देखिए फिर से हम इसके पैरेलल लाइन दोबारा बनाएंगे। अब कौन सा कट कर रहे हैं? 2S, दैट्स मीन 2S। 2S की एनर्जी 1S से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि जो बाकी के इलेक्ट्रॉन होंगे, कमिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें जा सकते हैं, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो 2S में चला जाएगा। फिर से देखिए, फिर से पैरेलल लाइन बनाएंगे, 2P देन 3S, दैट्स मीन 2P 3S। नाउ अगेन कट दिस वन लाइक दिस, 3P 4S, 3P 4S। स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे, यानी अभी जितना मैंने लिखा है उसमें सबसे कम एनर्जी 1S की, उससे ज़्यादा 2S की, उससे ज़्यादा 2P की, फिर 3S की, फिर 3P की, फिर 4S की। फिर से देखते हैं आगे, 3D 4P 5S। इसी के आगे सीक्वेंस में लिखेंगे आप 3D 4P 5S, then again 4D 5P 6S, 4D 5P 6S, then again 4F
5d 6p 7s, 4f 5d 6p 7s। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन अगेन सी 5f 6d 7p 8s, 5f 6d 7p 8s। डियर स्टूडेंट, इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। अगर हम इसको रिमूव भी कर देते हैं, अगर आप इसमें इतनी एनर्जीज़ के बारे में जानते हैं तो आप अपने 120 एलिमेंट्स के करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और आपको इस मेथड से जो ये सीरीज़ मिली, इससे आप किसी भी सबशेल की एनर्जी के बारे में जान सकते हैं कि किससे किसकी एनर्जी कम है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इस पूरे का नाम है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सो स्टूडेंट्स, अभी तो आपने एक बार इसको बनाया है और आपको इजी भी लगा होगा। और ये सीरीज़ आपको जब आप कुछ बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपको लर्न भी हो जाएगा। अब मैं जो स्कैंडियम की बात कर रहा था, या आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 2 8 11, जो उसको रॉन्ग बताया जा रहा था, उसको लिख के बताते हैं। स्कैंडियम 11, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि S में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, P में हम 6 रख सकते हैं, D में 10 रख सकते हैं और F में 14। इनसे ज़्यादा नहीं रख सकते, कम रख सकते हैं। सो सबसे पहले हम स्कैंडियम 21, सबसे पहले हम 1s लेंगे, 1s। S पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं, S2, कॉमा, देन अगेन 2s। S में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? S में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, 2s2। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स लिखे जा रहे हैं, कितने हो गए? 2 and 2 4। आफ्टर डैट 2p, P में हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 हुए हैं, 21 हमको रखने हैं, तो हम इजीली 6 रख सकते हैं। अब आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 2 4 6 10। 2p के बाद आता है 3s। सो s में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। अब आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। इसके बाद 3s के बाद 3p, p पे हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। और 3p के बाद आता है 4s। तो 4s में हम s में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। अब आपके 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। और 4s के बाद आता है आपका 3d, और हम d में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। लेकिन अब आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे नहीं हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं 1 ओनली। काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 12 18 20। सो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हैं हम D1 लिख देंगे। अब आप देखिए, ये जो नंबर लिखा है ये शेल को इंडिकेट करता है, ये 1 है और कहीं पे पहले 1 नहीं लिखा है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2, कॉमा, ये देखिए 2 लिखा है और ये 2 लिखा है, यानी ये भी सेकेंड शेल है और ये भी सेकेंड शेल है। सेकेंड शेल की S सब शेल, सेकेंड शेल की P सब शेल। इस पे इलेक्ट्रॉन 2 और 6 मिला के 8 हो गए। नाउ सी 3 3 and 3, there are 3 times 3। 3 शेल की S सब शेल, 3 शेल P सब शेल, 3 शेल D सब शेल, और इनके सब के इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 6 8 और 1 है, दैट्स मीन 9। नाउ दिस इज द 4th शेल and its electron is 2, so you have to write 2 here. So this is the correct electronic configuration of scandium 21 2892. Okay student, I think you have got about the writing the electronic configuration according to the SPDF
configuration. So I'm giving you question to do, and please solve this question and write the correct electronic configuration and send as a homework to me. Okay. Write electronic configuration of number 1 Fe26, number 2 Br35, number 3 Xe54, number 4 U92. You have to write the electronic configuration in SPDF and according to the KLMN, means आपको SPDF में लिखना है और नील्स बोर के अकॉर्डिंग भी 2818 लाइक उस तरह से भी लिखना है, और इसको आपको करना है. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको डिस्कस करना है. ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट.